A very good morning to all of you students. So today I am going to discuss some important things about the sound. That is a chapter that we already discussed in the class session. But if you have some doubt, this video will absolutely help in clearing the doubts if you have in this chapter. Okay, so let's start our chapter, that is sound. Many times you feel that several sounds are coming from the various parts. Okay, that you are hearing the several types of the sounds, and you can recognize the sounds by their voice. If you are hearing your voice of brother and your mother, you can easily recognize that it's the voice of your either brother or your mother. Okay, so how can you recognize that these two sounds are different? This is because your mind is capable of recognizing that these two sounds are of different and related to two different people. Okay, so now we are going to discuss about the several properties that makes the different sound different from each other. Okay, so let's start. Firstly, we are going to exemplify various objects that are producing sound. Okay, here we are seeing that it is a sitar, tabla, flute and harmonium. They are producing different types of the sound by the different objects that are used in these instruments. जैसे in tabla, a stretch membrane, in sitar, a stretch string, and in flute, it's a stretch एयर कॉलम, है ना. ये सब चीजें क्या है, इनकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. बट यूजुअली जब भी आपने देखा होगा जहां पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, वेयर एवर द साउंड इज प्रोड्यूस, देयर इज अ वाइब्रेशन. सो व्हाट एक्चुअली इज अ साउंड इज a sound is a vibration of a vibrating body when it struck with the another one. Okay, just see here, this boy strike with this metal pen, and when this strike with the metal pen, it creates a vibration that ultimately leads to the formation of sound. Okay, similarly here you see that if we stretch the rubber and then pull the rubber from in between in just center of the stretched rubber and leaves, it creates a vibration that also produces sound. So that's why I just only clarified that every vibrating object is producing sound. Okay, here are some examples. This is the ektara, that is by the vibration within a string. ठीक है, ये उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपके साउंड प्रोड्यूस होती है. तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. वन मोर एग्जाम्पल दैट आई ऑल्सो वांट टू शो हियर, दैट इज इट इज अ जल तरंग. ठीक है, यहाँ देखिए, हियर यू सी दैट देयर आर द डिफरेंट वाटर लेवल्स इन ईच ग्लास. सो द डिफरेंट वाटर लेवल्स प्रोड्यूसेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल व्हेन दिस बॉय strike this stick to the different glass having the different water level. That's why it produces a harmony of the sound produces by the different water level glasses. Okay, and how this produces a harmony of the sound that will look very pleasing to hear. Okay, so these are the various examples of the sound produced by the vibration of the object when they get struck. Okay, now comes to another point, that how can we produce sound when we talk. Okay, what actually we have that is producing a sound. भाई हमने ये देखा कि हाँ, हमारे चारों तरफ जहां से भी आवाजें आ रही हैं, वो आवाज कहाँ से है कि उनके अंदर कोई वाइब्रेशन हुआ, और वो वाइब्रेशन जो है उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. बट हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. तो यस, वी ऑल्सो हैव एन ऑर्गन दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. जस्ट पुट योर फिंगर एट द neck, okay, at the upper part of the neck, and you see that there is something protruding out of the neck, that is called Adam's apple, and that is your larynx part, and that is also called voice box. ठीक है, and that is lying just upper side of the windpipe, or you can say that trachea. Here you see, this is the this finger touches the
voice box. ठीक है, and here you see this is the diagram of the voice box in which this yellow part is the muscles that can stretch or loose these two. This is white. Here you see this, ये वाली जो पार्ट है आपका ये, ठीक है, ये क्या है आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं, ये क्या है आपकी वोकल कॉर्ड्स, और इनके बीच में ये क्या है, जगह है। और इन वोकल कॉर्ड्स को ये जो येलो दिख रहा है, ये मसल्स क्या करती हैं, या तो इसको स्ट्रेच करती हैं या लूज करती हैं, जिसकी वजह से आवाज पतली या मोटी होती है। ओके, अब बात ये आती है कि आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है। तो जब भी ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जैसे ही इसके बीच में से जो गैप देख रहे हैं, यहां से जैसे ही हवा एयर पास होती है तो ये क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब आप चुप रहेंगे तो ये नहीं बोलेगी, ये वाइब्रेट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती है। और जैसे ही आप बोलेंगे तो यहाँ से एयर पास होगी, इन दोनों के बीच में से, इस दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ से एयर पास होगी, और जिसकी वजह से एयर जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, अब नाउ वी आर सीइंग दैट सम पर्सन हैव डिफरेंट वॉइस क्वालिटी. ओके, सम हैव लो पिच, some has having high pitch. तो why they are actually different voice quality. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कहीं पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स टाइटली स्ट्रेच होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द दीज मसल्स, एंड कहीं पे ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो लूज होती हैं, इसकी वजह से, इन्हीं मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी अलग अलग आवाजें होती हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम दूसरा फैक्टर देखते हैं आवाज अलग होने का, तो ये जो वोकल कॉर्ड है इसकी लेंथ भी जो है वो भी मैटर करती है आवाज के डिफरेंट होने में। ओके, आवाज के डिफरेंट होने में जहां वोकल कॉर्ड जो है वो लंबी होगी उसकी आवाज अलग होगी, और जहां छोटी होगी उसकी आवाज अलग होगी। इसी वजह से एक मैन, एक वुमेन और एक बच्चे के अंदर जो वॉइस क्वालिटी है वो अलग अलग होती है, और आप उस आवाज को सुन के पता कर सकते हो कि ये बच्चे की आवाज है, ये एक औरत की आवाज हो सकती है, या एक आदमी की आवाज हो सकती है। ओके, यूजुअली मैन के अंदर वोकल लेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम वुमेन्स में होती है, और सबसे छोटी जो होती है वोकल लेंथ, ये जो वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है, ये सबसे छोटी किसके अंदर होती है, आपके चिल्ड्रंस के अंदर होती है। Okay, so this is how the sound is produced when we talk. And as I said, that air is passes through the slit between these two vocal cords. When we talk, the lungs pressure the air to pass through this slit. ओके, हम जैसे ही बोलते हैं तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, हमारे लंग्स जो है वो प्रेशर डालते हैं एयर पे कि वो इस स्लिट से पास हो, और इस स्लिट से पास होके हवा बाहर को जाएगी। तो इससे जब पास होगी तो ये वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज हाउ वी टॉक, वी प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी टॉक. I hope it will very clear to you that how the sound is produced when we talk. Now, come to the point that when we talk, when we produce a sound, it is heard by the some another one, and we also hear our voice. That how is it possible? Okay, so it always keep in mind that sound can be traveled by the any medium. That means it requires a medium to pass from one point to the another point. To reach from one point to the another point, it requires a medium, and it will propagate by every solid, liquid or gas. ये तीनों से, सॉलिड से भी हो सकती है, लिक्विड से भी हो सकती है, और गैसेस के थ्रू भी ये क्या हो सकती है, प्रोपेगेट हो सकती है। अगर वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, जैसे कि जहां वैक्यूम है, वैक्यूम में ना एयर होगी, ठीक है, वैक्यूम क्या होता है, जहां पे एयर नहीं होती है, तो वहां पर साउंड आपको सुनाई नहीं देती है, ठीक है, तभी क्या होता है, आपको साउंड जो होगी वो सुनाई नहीं देगी। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट साउंड्स रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ओके, नाउ आई coming to the next point, that if the sound is produced, how it is hearable. Okay, how it is hearable. So I'm just explain you that this is the structure of the ear that is given here in your book, and it is not mentioned, these parts are not mentioned in your books, so I write it here
So please mention in your book also. It will help you to understand then how the sound creates is hearable to us. Okay, so let's start that how can we hear the sound. It is a external ear, that is earlobe that we all have, that is seen by the outer part. ओके हम सबको अपना ईयर लोब दिखता है, ये सब बाहर का, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर कहते हैं. ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है. ये जो एक्सटर्नल ईयर से जो ये अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड ईयर कैनाल. इसे हम क्या कहते हैं, ईयर कैनाल कहते हैं. ठीक है, ईयर कैनाल से होते हुए ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम. ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम. तो जब हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे कान के अंदर एंटर करती है और इस ईयर कैनाल के होते हुए कहाँ आती है, ईयर ड्रम से टकराती है. ईयर ड्रम से टकराने पे ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट होना चालू करता है. कैसे करता है, वाइब्रेट. ठीक है, अब वाइब्रेट करना चालू करता है तो वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है कि इस वाइब्रेशन की वजह से इस ईयर ड्रम से जो 3 बोन्स जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी, द फर्स्ट बोन दैट इज कॉल्ड मैलियस, द सेकेंड बोन incus and the third one is stapes. Okay, malleus, incus and stapes. ये तीनों बोन एक दूसरे से 1 by 1 जुड़ी हुई हैं. इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशन की वजह से इस वाइब्रेशन को ये तीनों बोन्स क्या करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं और एम्पलीफाई करने के बाद इसे कहाँ पहुंचाती हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया. ओके, कॉक्लिया ये कैसा है, ईयर के अंदर का पार्ट है, इंटरनल पार्ट, जिसके अंदर क्या होता है, इसकी शेप आप यहाँ देख रहे हैं कैसी है, स्नेल की तरह, और इसका साइज जो होता है नियर अबाउट जैसे आपके मटर के दाने के बराबर. ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया. इस कॉक्लिया के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है. तो जब वाइब्रेशन इस ईयर ड्रम से इन बोन्स से होती हुई कॉक्लिया तक पहुंचती है तो वो जो वाइब्रेशन है वो फ्लूइड में जाता है, जिसकी वजह से उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती हैं. और वो वेव्स जो होती हैं वो इस कॉक्लिया के अंदर की सरफेस पर कुछ हेयर्स होते हैं. उन हेयर्स के थ्रू वो वेव्स कहाँ जाती हैं, आपके नर्व सेल्स तक जाती हैं. ओके, नर्व सेल्स तक जाने के बाद वो नर्व सेल्स क्या करती हैं, आपकी उस वेव्स को या उन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके कहाँ तक पहुंचाती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं. और ब्रेन से पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि हमें कहाँ से और कैसी आवाज आ रही है. इज इट क्लियर नाउ? I again repeat, I also explain again that when the sound comes, it enters in your ear and travels through a ear canal, reaches to the eardrum, which leads to its vibration, and that vibration is amplified by the 3 bones that are lying just one after another, named as malleus, incus, and stapes. And the stapes transfer these vibration from the eardrum to the cochlea, where the fluid is present, in which the fluid is present and by the vibration in the fluid, the waves are created that get it by the hairs that are present on the inner surface of the cochlea, that convert the wave signal into an electrical signal that ultimately reach to the brain by the nerve fibers or the nerve cell. And this is the way that how do you recognize the sound that you are hearing. Okay, so this is all about that how do you create a sound and how can you hear the sound that comes in your ear. So thank you for this session. Have a nice day.